जी क्लास स्लाइड शेयर हो रही है? यस मैम। जी बेटा शुरू करें हम क्लास। यस मैम। अच्छा जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपकी जिस तरह इस वीक में कुछ क्लास रिवीजन की रखी गई थी ताकि कुछ चीज़ें रिवाइज हो जाए जिनका कोर्स ख़त्म हो गया था। जिस तरह आप कह रहे हो कि अभी कोई एक दो टॉपिक्स नए पढ़े हैं तो आपका कोर्स का पार्ट है और सिलेबस में है तो ऑफ कोर्स दैट वुड बी इंक्लूडेड। तो एक दो ही टॉपिक्स होंगे, ज़्यादा कोई ज़्यादा नहीं होंगे तो वो आपने करने हैं। लेकिन हिस्टोलॉजी में जो है वो रिवीजन है। थर्मस दे दें। अच्छा जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Histology, I've named it an accelerated class because it's going to be just a quick revision for what you have studied up till now. You have up till now you have learned 3 chapters: cell, epithelium, and connective tissue. सेल जो है वो आप बहुत ज्यादा पढ़ चुके हो, हर जगह पे सेल का, और ना ही इतना सच्ची बात है कोई सेल का वो कोई बहुत ज्यादा पार्ट था कि मैं उसका एनालिसिस करवाती। मेनली जो पार्ट रह गया है दैट इज एपिथेलियम, and what we're going to do in the epithelium, we are going to do the classification, and then from the tissue slides, I mean we have taken the pictures from our slides in the labs and then had been diagrams.
this is a general, classification showing the tissues. The tissues are basically of two types. Epithelial tissues हैं, connective tissues हैं, और epithelial tissues की आगे से ये types हैं, और आगे से जो connective tissue है, it is further divided into cell and extracellular matrix. And cells are fibroblast, chondroblast, osteoblast, fibroblast, lymphocytes, neutrophils, plasma cells. Many cells are there. And extracellular matrix में आपके पास दो चीजें आ जाती है, फाइबर्स आ जाते हैं और ग्राउंड सब्सटेंस आ जाते हैं. So matrix is composed of two organic substances, the fibers and the ground substance. And the connective tissue, the third component is cell. So if anybody asks, how is connective tissue being made? You will say it's composed of cell and fibers and ground substance. What is an epithelium actually? Epithelium is a group of cells which is resting over a basement membrane with very less connective tissue between them. उनके दरमियान connective tissue usually नहीं होता है, ठीक है, connection उनके दरमियान में नहीं होता है. So this is a structural classification. If you go for the structural classification, of the cells, only the cell, there are three types of cell: the squamous cell, the cuboidal cells, the columnar cell, or the polygonal or the polyhedral cells. ये जो cells हैं यही आपस में मिल के आगे से epithelial cells जो है वो आगे से इसका टिश्यू बनाते हैं. squamous cells जो है वो squamous epithelium बनाएंगे, cuboidal cell cuboidal epithelium बनाएंगे, columnar cell columnar epithelium बनाएंगे, polyhedral cell जो है वो स्क्वेमस के साथ लगेंगे तो स्ट्रेटिफाइड बन जाएगा. पॉलीहेड्रल सेल्स जहाँ पे लगे होते हैं वहाँ पे स्ट्रेटिफाइड आ जाता है. They do not exist alone. They always exist in either columnar with cuboidal or with the squamous. So we have these four types of cells which are playing an important role in the formation of epithelium. Epithelial cells protein secreting cells भी हैं, glycoprotein और mucin secreting भी cells हैं. Can anybody tell me what is mucin secreting cell? जी कोई बताएगा म्यूसिन सीक्रेट सेल्स कौन से होते हैं, क्या काम होता है इनका? Ma'am, they secrete goblet mucus. cells. गॉबलेट सेल भी सिक्रेट करते हैं और म्यूकस सेल्स जो होते हैं, म्यूकस सेल गॉबलेट सेल दोनों आ जाते हैं. और ये म्यूसिन सिक्रेट करते हैं जब वो सेल्स बाहर जाती है, कंबाइंस विद वाटर एंड फॉर्म द म्यूकस. और म्यूकस का काम क्या होता है? एज अ लुब्रिकेंट काम करती है. फिर इसके अलावा सारे सेल्स हैं, आप स्टेरॉइड भी हैं, आयन ट्रांसपोर्टिंग भी हैं, पिनोसाइटोसिस सेल्स भी हैं, मायोएपिथेलियल सेल्स भी हैं. ठीक है, इनकी कैरेक्टरिस्टिक आप ये पढ़ चुके हो कि उसमें ब्लड वेसल्स नहीं होती है. यूजुअली दे ड्राइव their nutrition from the blood which is the underlying connective tissue. उनके अंदर जो connective tissue होता है नीचे basement membrane के नीचे, वो वहां से जो है न्यूट्रिशन थ्रू डिफ्यूजन जो है वो अपनी ड्राइव करती हैं. they do regenerate, they form the glands. बाकी आपको ये जो एक दो तीन टर्म्स है ये आपको आनी चाहिए. On the basis of function, there are two types of epithelium: glandular and covering epithelium. If we talk about the epithelium, we have simple, we have stratified. The simple has been classified into squamous, voidal, columnar, and sometimes pseudostratified is regarded as the third type. कुछ बुक्स में इसको सिंपल, फिर स्ट्रेटिफाइड और सूडो स्ट्रेटिफाइड को तीसरा टाइप किया गया है, और बाज इसको सिंपल का ही टाइप कहते हैं. अच्छा जी, उसके बाद कलमनर में आ जाता है नॉन सिलिएटेड, सिलिएटेड. और अगर हम स्ट्रेटिफाइड में देखें तो हमारे पास स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल, कलमनर ट्रांजिशनल, और फिर स्क्वेमस में आपके पास केराटिनाइज्ड एंड नॉन केराटिनाइज्ड आ जाता है. Stratified का मतलब है कि if there is more than one layer of cells, I mean this is just one building and this is multiple story building, multiple stories हैं. Simple epithelium, squamous epithelium है. This is what you find in our labs. These are the pictures of the slides from our labs. This is the alveoli of the lung showing blue arrow, the squamous one.
and this is the renal corpuscle. This part is the renal corpuscle. This is the renal corpuscle. इसका कैप्सूल है ये, और ये सिंपल स्क्वेमस होता है. This is how you draw it. या आपने अपनी ड्रॉ की हुई. This is handmade diagram. ये तो मैंने आपको दिखानी थी. This will help you in spotting, and this is how you're going to draw it in your practical, written practical. So this is the squamous epithelium. Lung alveoli मैंने आपको दिखाए हैं. अभी मैंने आपको, this is exactly this part is this part. ये जो आप, ठीक है, बोमन्स कैप्सूल, ये बोमन्स कैप्सूल का पार्ट है, और इधर आप ये, ठीक है, कैपिलरीज, द कैपिलरी एंडोथेलियम सिंपल स्क्वेमस. ये सिंपल स्क्वेमस डार्क सी लाइनिंग है, और नीचे से कनेक्टिव टिश्यू है. जो आप ये देख रहे हो ये कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है. ये सारा कनेक्टिव टिश्यू, नीचे कनेक्टिव टिश्यू है, और ये सिंपल स्क्वेमस बारीक सी जो लाइनिंग है. जी कोई बताएगा सिंपल स्क्वेमस क्यों होती है बेसिकली? व्हाई सिंपल स्क्वेमस देयर? डिफ्यूजन इजी होती है. डिफ्यूजन के लिए, जहाँ पे where you think maximum amount of diffusion between two component is needed, and here we are talking about blood, so that place is composed of simple squamous epithelium. जी क्लास आपका समझ आ गई? So preferably ये जो स्लाइड्स हैं ये मैं आपको स्पॉटिंग के दूंगी, आप आइडेंटिफाई करोगे, आप लिखोगे मैम ये सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम है, जिसमें हम देख रहे हैं स्पिंडल शेप cells resting on a basement membrane and centrally flattened nucleus. Glomerulus, Bowman capsule and endothelium. इसके अलावा lung alveoli भी इसके एग्जांपल है. Simple cuboidal epithelium. जी, simple cuboidal, don't mind about the spelling. जी, ये simple cuboidal है, and this is the image of thyroid gland. ठीक है, ये देखो ये जो round nucleus है. एक चीज और है बेटा कि आप जब भी epithelium देखते हो, epithelium में आपको how do you identify epithelium? आप मुझे एक बात बताओगे, अगर आप स्लाइड देख रहे हो माइक्रोस्कोप की, तो आप कैसे, आपको पता चलेगा कि ये एपिथेलियम कौन सी है? Can anybody tell me? You cannot see the cell membrane under microscope because cell membrane is not visible under light microscope. So how would you know कि which kind of epithelium are you watching? कैसे पता चलता है? जल्दी बताओ. यहाँ पे आपको क्या चीज नजर आ रही है? Nucleus. So you identify the epithelium on the basis of nucleus, because you cannot see the boundaries of the cell. आपको सिर्फ गोल गोल न्यूक्लियस नजर आ रहे हैं, तो अगर गोल गोल न्यूक्लियस खाली नजर आ रहे हैं तो इस एपिथेलियम को आप कहते हो कि ये एपिथेलियम जो है प्रेफरेबली ये आपके पास सिंपल क्यूबॉइडल है. So this is how you make it. Exactly ये thyroid gland ही है, और ये आप देख रहे हो ये जो है colloid है thyroid gland का, ये वाला पार्ट है, और ये जो है आपको नजर आ रहा है सारा cuboidal epithelium, ये वाला पार्ट है. लेकिन यहाँ पे ये सेल की बाउंड्रीज नजर नहीं आती हमें स्लाइड्स में, क्योंकि वो लाइट माइक्रोस्कोपिक नहीं स्ट्रक्चर सेल मेम्ब्रेन. ठीक है, अगेन when you draw epithelium you must draw a basement membrane, and the cell will rest on a basement membrane which will point towards the lumen. बाज दफा बच्चे जो थे ना वो पता है क्या करते हैं, सेल को इधर बना देते हैं उल्टा. भाई सेल ने तो सिक्रीशन करनी है, तो सेल को तो अंदर ल्यूमन की तरफ होना चाहिए ना, ताकि ल्यूमन में सिक्रीट करे. उसने बाहर कनेक्टिव टिश्यू पे में क्या सिक्रीशन करनी है उससे, तो आपने ल्यूमन की तरफ सेल बनाने होते हैं. ठीक है, लैमिना प्रोप्रिया इज अ वर्ड टू यूज द कनेक्टिव टिश्यू एक्चुअली. ठीक है, तो ये लैमिना प्रोप्रिया, इससे कंफ्यूज ना, इसका मतलब है कनेक्टिव टिश्यू. मोहम्मद इब्राहिम पानी प्लीज मुझे देंगे ठंडा. क्यूबॉइडल एपिथेलियम ट्यूब शेप सेल्स हैं. बेसमेंट मेम्ब्रेन का वर्ड जरूर करना है क्योंकि सेल हवा में नहीं तैरे होते. सेंट्रली राउंडेड न्यूक्लियस. जी सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम, दिस इज हाउ इट लुक्स. ऑफ कोर्स बेटा व्हाट यू ड्रॉ इज नॉट एग्जैक्टली व्हाट यू सी, so it is different, but you can see the tall nuclei over here, and you can see column shaped cells. So this is simple columnar epithelium, gallbladder, and this is again the gallbladder, and this is very beautifully made image, a diagram, column shaped cells, and with a basal 1/3 located standing nucleus. ठीक है, basal oval lying in the lower 1/3 of the cell. इसका जो न्यूक्लियस ऐसे होता है. ठीक है, again this is the basement membrane and this is the connective tissue.
ब्रश बॉर्डर जो है, डू यू नो व्हाट इज ब्रश बॉर्डर? कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट इज ब्रश बॉर्डर? जी क्लास। Microvilli. Exactly. Brush border means that it is made up of microvilli. And why are microvilli over there? Microvilli, if any structure is microvilli, what does it indicate? It increases the surface area of absorption. Exactly, it increases the Absorptive surface area of है वो। absorption. ठीक है, तो आपके पास ये हो गया. ठीक है, again you can see Ma'am. here very beautiful. बेटा एक मिनट में सिंपल कलमना खत्म करती हूँ. देखिए कितने प्यारे ये टॉल से सेल्स हैं और नीचे बेसल 1/3 पे न्यूक्लियस है. ठीक है, सेम है. जी जी बेटा बोलिए. मैम ये हमें पूरी पिक्चर जैसे कि अभी आ रही है लेफ्ट और राइट इस तरह आएगी या ये हैंडमेड आएगी? नहीं नहीं बेटा, हैंडमेड आपने हमेशा बनानी होती है. व्हाट टू डू, यू हैव टू मेक द हैंडमेड बाय योरसेल्फ ऑन copies on your page. और जो आपको स्पॉटिंग के लिए आएगी, that will be the slide picture. ठीक है, that will be the उसमें slide. तो न्यूक्लियस इतना विजिबल नहीं है. बेटा इसमें न्यूक्लियस आपको क्यों नहीं नजर आ रहे हैं? ये देखें न्यूक्लियस डार्क, ये सारे जो डार्क से हैं सारे न्यूक्लियस है ना, ये देखें. क्योंकि देखिए स्लाइड्स पुरानी जब हो जाती है तो टियर एंड वेयर उसमें होता है, तो ज्यादा आपका वो चीज तो नहीं रहेगी ना 100%. जब आपकी स्लाइड्स पुरानी हो जाती है ना, बाहर की स्लाइड्स होती हैं इतनी पहले एक्सपेंसिव होती है. शुक्र है इतनी भी मिल गई है, वरना ये भी नहीं मिलते हैं. तो आपने इसको ध्यान में रखना है. ठीक है, देख लेना कि बेसल ओवल न्यूक्लियस एट वर्टिकल एक्सिस यानी बेसल 1/3 पे होता है. ठीक है, उसके बाद जी यहाँ पे बच्चे थोड़ा करते हैं स्पेशलाइज्ड कलमनर. The other name for specialized columnar is simple columnar epithelium with goblet cells. ठीक है, ये goblet cell के साथ होती है. ठीक, अच्छा goblet cell मैं आपको दिखाती हूँ. ये देखिए इस सारे खाली हैं goblet cells. ठीक है, एग्जाम्पल इज सॉरी यहाँ पे गॉल ब्लैडर लिखा गया है, मैं इसको करेक्ट कर लूंगी. इट इज नॉट गॉबलेट सेल गॉल ब्लैडर, दैट इज एक्चुअली द कोलन की पिक्चर है, लार्ज इंटेस्टाइन की है. ठीक है, अब लार्ज इंटेस्टाइन में अगर आप देखते हो तो हमें बहुत ज्यादा जो है ना उसमें अल्लाह ने बहुत ज्यादा गॉबलेट सेल जो है रखे हुए उसके एपिथेलियम में, सो दैट दे सीक्रेट मोर म्यूकस, क्योंकि वहां से पानी अब्सॉर्ब होता है. अगर वहां से पानी वहां पे अब्सॉर्ब हो जाता है तो अगर म्यूकस वहां पे ना हो तो स्टूल विल बिकम सो मच हार्डन्ड कि बहुत मुश्किल जो होता है डेफिकेशन रिफ्लेक्स बहुत मुश्किल हो जाए. तो इसलिए सो देयर सो मेनी म्यूकस सेल गॉबलेट सेल्स इतनी ज्यादा होते हैं कि देयर इज वन कलमनर सेल देन वन गॉबलेट सेल. 1:1 हो जाता है, 1 गॉबलेट 1 कलमनर, 1 गॉबलेट 1 कलमनर. लेकिन यहाँ पे यूजुअली गॉबलेट सेल्स ही नजर आ रहे हैं, ये खाली खाली से. व्हाई डू गॉबलेट अपीयर एम्प्टी? Why do goblet cell appear empty? जी क्लास. मैम क्योंकि जो म्यूसिन ग्रैन्यूल्स होते हैं वो स्टेन नहीं लेते हैं. उनके अंदर जो म्यूसिन होता है ना वो प्रिपेयर करते हैं वो. इसलिए कि wash दो out. बातें होती हैं, एक तो म्यूसिन स्टेन नहीं लेता, दूसरा जब हम स्लाइड बना रहे होते हैं तो म्यूसिन जो होता है वो सारा वॉश आउट हो जाता है. ठीक है, लेकिन म्यूसिन जो है वो रूटीन की स्टेन नहीं लेता. H&D जो हम अपने लैब्स में यूज कर रहे होते हैं, there is a special stain, there's a special stain for you know the mucin, and that is let me tell you, इसको मैं कॉलन कर दूं. A special stain for mucin is that is mucin is fast stain. ठीक है, फास्ट स्टेन होता है पीरियोडिक एसिड शिफ्ट स्टेन. आप इसको सर्च कर लेना. ये कार्बोहाइड्रेट्स है, म्यूसिन इज अ कार्बोहाइड्रेट, तो ये जो है फास्ट स्टेन लेता है, H&E स्टेन नहीं लेता ये. ठीक है, अच्छा उसके बाद आपके पास ये इसकी वो है कलमनर एपिथेलियम विद द गॉबलेट सेल्स. ठीक है, आप ये ऐसे बनाओगे. गॉबलेट सेल जो इसका नीचे स्टैंडिंग न्यूक्लियस होता है, ओवल बेसल न्यूक्लियस, वर्टिकल एक्सिस पे लंबा सा होता है. बाज बच्चे इसको ना यूं पॉप आउट कर देते हैं, इतना बाहर निकला गॉबलेट सेल, दैट इज ईदर रॉन्ग. ठीक है, उसका नहीं होता. अच्छा उसके लिए पॉइंट्स है जी.
हमने पढ़ सिंपल कलमनर एपिथेलियम के साथ हमने पढ़ लिया सिंपल कलमनर एपिथेलियम विद सीलिया, स्पेशलाइज्ड कलमनर एपिथेलियम। ठीक है, अब ये जो है आप देख रहे हो ये वाले, ये एग्जैक्टली आपको बहुत क्लियर नहीं होंगे, बट दैट इज अ पार्ट, दैट इज अ फोल्ड which you are seeing over here exactly। ठीक है, ये फेलोपियन ट्यूब या यूट्राइन ट्यूब एक ही बात है। ठीक है, तो इसकी एपिथेलियम क्या होती है? सिंपल कलमनर एपिथेलियम विद सीलिया। ठीक है, आपने ये याद रखना है, सिंपल कलमनर एपिथेलियम विद होते हैं। Cilia not meant to increase the absorptive area. These are meant to propel something towards some end. जी क्लास समझ आ गई? जी क्लास सिंपल कलमनर कितनी टाइप की कर ली? सीलिया हो गया, स्पेशलाइज्ड हो गई, और एक सिंपल कलमनर खुद हो गई। सूडो स्ट्रेटिफाइड कलमनर की तरफ आते हैं। एपिडिडमस की जो आप एपिथेलियल लाइनिंग देख रहे हो ब्लू एरो में, ये यहाँ पे हुई हुई है। द न्यूक्लियाई दे आर एट डिफरेंट लेवल्स, सो दे अपीयर टू बी स्ट्रेटिफाइड, बट दैट इज अ फॉल्स अपीयरिंग। आप ट्रू सेंस में स्ट्रेटिफाइड नहीं है, that is not stratified in actual sense, but because the nuclei they are standing at different level, so it appears to be a multiple story building, otherwise ये है नहीं। तो ये आपके पास है स्टेरोसिलिया साथ, एंड हियर यू कैन ऑब्जर्व द स्टेरोसिलिया। ठीक है, जी अगेन स्टेरोसिलिया दे आर मेंट फॉर सम increasing the area, surface area, and they are much taller than microvilli, much taller। very important, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ट्रेकिया which is actually pseudostratified ciliated columnar epithelium with goblet cell, यहाँ पे goblet cell आप बना दोगे और यहाँ पे बीच में सीलिया बना दोगे। ठीक है, पीछे वाले में स्टेरियोसिलिया थे, इसमें सीलिया है, और ये आप देख रहे हो ये डिफरेंट लेवल्स पे न्यूक्लियाई पड़े हुए हैं। दिस इज ट्रेकिया। स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, जी ब्लू लाइन शोज द स्किन एपिडर्मिस एंड दिस इज द डर्मिस। इसमें कितने कोलेजन फाइबर्स पड़े हुए हैं देखिए, दिस इज डर्मिस एंड व्हाट यू हैव ड्रॉन योर कॉपीज एंड पिक्चर ऑफ द स्ट्रेटिफाइड ठीक है। This is actually ये आपको देख रहे हो तो सारी रटन है इनमें Recording in cells progress. and simple squamous cell on the top. This is esophagus. मैंने आपको बताया था पॉलीहेड्रल सेल कभी भी अकेले नहीं पड़े होते हैं, पॉलीहेड्रल सेल किसी सेल के साथ हमेशा होंगे, खाली सेल आपको नहीं नजर आते हैं। जी लैमिना प्रोप्रिया क्या है, मैंने क्या बताया? व्हाट इज लैमिना प्रोप्रिया? Connective tissue. Connective tissue. Connective tissue. Another very important, very important one, transitional epithelium, which lines where is it located? Urogenital tract. यूरोजेनिटल ट्रैक्ट नहीं है, सिर्फ Urinary यूरिनरी ट्रैक्ट पे है। ठीक है, यानी कि यूरेटर हो गया, यूरिनरी ब्लैडर हो गया, साथ आपके पास किडनी जो जहाँ से यूरेटर शुरू होता है रीनल पेल्विस वहाँ पे। अच्छा ये आप देखें, ये आपके पास सेल है, मल्टीपल लेयर्ड हैं, और ये ऊपर ये डोम शेप सेल है, ये बड़े बड़े शेप सेल का क्वेश्चन बहुत आता है कि डोम शेप सेल्स का क्या काम है। डोम शेप सेल भाई इधर पड़े क्यों हैं, यहाँ पे क्यों इतने टाइट
पड़े हुए हैं। तो इसमें दो बातें हैं। एक तो बात ये है कि इसमें आप जंक्शंस होते हैं जो कि जोना ऑक्लूडेंस होते हैं। These junctions prevent the leakage of urine from the lumen into the deeper tissue. So like this is a protective mechanism to protect the wall of the bladder against the acidic effect of the urine, number one. And number two, these cells have hinges in between them. इनके दरमियान hinges होती हैं और वो जब bladder relax हुई है तो वो hinges जो होती हैं वो अंदर fold हो जाती हैं और bladder contracted state में चली जाती है। ठीक है ना, contracted state में। contracted का मतलब है कि अभी bladder खाली है, ठीक है। कंट्रैक्टेड है यानी कि वो जिस तरह बलून नहीं होता, बलून जब खाली हो जाता है वो जिस तरह क्रम्पल हो जाता है, तो इस तरह ब्लैडर खाली है। और ये लेयर्स जब स्ट्रेच हो जाती हैं, स्ट्रेच मीन इट इज बीइंग फिल्ड विद यूरिन। तो जिस तरह बलून को भी आप वाटर से फिल अप करते हैं तो बलून जो होता है वो टाइट होता जाता है और उसकी जो लेयर्स हैं कम होती जाती हैं। जिस स्पॉन्ज है, स्पॉन्ज को आप खींचोगे तो लेयर्स कम हो जाती हैं, तो इस तरह उसकी भी थिकनेस कम हो जाती है। तो कंट्रैक्टेड का क्या मतलब है यहाँ पे? जी बेटा, व्हाट डू यू मीन कंट्रैक्टेड ओवर हियर? रिलैक्स। Exactly, relax. No urine. Relax. अभी urine नहीं है, रिलैक्स है, तभी वो फुल फ्लैज उसकी लेयर्स हैं। अब इसको आप खींचोगे, टाइट होती जाएगी तो ये 8 लेयर्स से 4 या 3 लेयर्स में आ जाएगी जब ये फिलअप होगी। जी, दिस इज स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल, स्ट्रेटिफाइड कलमनर। ये आप देख लीजिएगा, स्वेट ग्लैंड्स में है और इसकी सबसे एग्जांपल कंजंक्टिवा में है। ग्लैंड्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसकी जो पहले हैंडमेड पिक्चर मैंने इसलिए लगाई बिकॉज यू डोंट नीड इट एग्जैक्टली। व्हाट यू हैव टू मेक इन द ग्लैंड इज जस्ट अ सीरस एसिनाई और म्यूकस एसिनाई और सीरस सेल और म्यूकस सेल। इसकी जो पूरा जो इमेज है, यू डोंट हैव टू ड्रॉ इट, इट्स एक्चुअली अ सेकंड ईयर डायग्राम जो सिलिवरी ग्लैंड है, ठीक है। सो दिस इज पैरोटिड ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड्स मीन इसमें सीरस एसिनाई है। व्हाट डू यू मीन बाय सीरस एसिनाई? अगर मैं बात करती हूँ सीरस एसिनाई की, तो सीरस एसिनाई का क्या मतलब है? They produce serum. They produce watery secretion full of proteins, ठीक है। अच्छा, अब ये देखिए जी, क्या आपको नजर आ रहा है? This is mucus acini and these empty ones are which acini? कौन सा acini है? जी क्लास, और कोई बोले, बॉयज में से कोई बताए। जी, कौन से acini है खाली खाली से जो आपको पड़े लग रहे हैं? म्यूकस एसिनाई। म्यूकस एसिनाई स्टेन क्यों नहीं हो रहे, खाली क्यों पड़े हुए हैं? इनके अंदर क्या चीज है जो स्टेन नहीं हो रही? Mucin. म्यूसिन जो है, मैंने भी बताया, आम स्टेन नहीं लेती, ये एचएनडी स्टेन है, एचएनडी स्टेन नहीं लेती, ठीक है, बिकॉज इट इज ऑफ कार्बोहाइड्रेट टाइप और कार्बोहाइड्रेट पास स्टेन होती है, पीएएस स्टेन। एंड व्हाट टाइप ऑफ सेक्शन इज देयर? मीरोक्राइन। मैं आपको बताती हूँ बाद में। कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू एम्ब्रियोनिक है। एम्ब्रियोनिक में म्यूकॉइड और मेसेंकाइमल दो आते हैं, 2 एम्स याद रखो। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर है, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में लूज है, एडिपोज, रेटिकुलर, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, रेगुलर एंड इररेगुलर। जी, इररेगुलर की क्या एग्जांपल है? जल्दी बताएगा कोई? मुझे पढ़ चुके हो सारी, अब तो ब्लॉक टेस्ट 2 दिन बाद। इररेगुलर की क्या एग्जांपल है, जल्दी बताओ। जी क्लास सो गए हो, जल्दी बोलो। मैम पेरियोस्टियम। बेटिया इररेगुलर जो सबसे बेहतर जो इररेगुलर है उसकी डर्मिस, डर्मिस ऑफ स्किन। डर्मिस, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपके पास स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है। क्लासिफिकेशन ऑफ एपिथेलियम और कनेक्टिव टिश्यू बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर क्वेश्चन आता है, यूजुअली फेवरेट क्वेश्चंस भी होते हैं इनके, ठीक है जी। ये आपने बनाया बच्चे एडिपोज टिश्यू, ठीक है। देखो सिग्नेट रिंग अपीयरेंस है, रिंग की शेप की अपीयरेंस है। I don't know why did I write traditional epithelium at the top,
इसको मैं सही कर देती हूँ जी, क्योंकि स्लाइड्स बार दफा कॉपी पेस्ट कर रहे हो जी। सिग्नेट रिंग अपीयरेंस है और ये आपने ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। जो आप ड्रॉ किया हुआ है वो ऐसे ड्रॉ किया हुआ है। इसकी 3 स्टेन होते हैं बेटा यूजुअली। एक होता है आपके पास सिंपल HND स्टेन, एक होता है सुडान स्टेन जो कि येलो पेयर करता है, और एक होता है ऑस्मिक ब्लैक जिससे ब्लैक फैट सेल्स होते हैं। लेकिन अगर आपको एडिपोज टिश्यू बनाना आता है तो आपने सबसे पहले तो ये जरूर बनाना है, ठीक है। और उसमें आपने साथ ये एक सिग्नेट रिंग अपीयरेंस आपने बनानी है विद अ पेरिफेरल न्यूक्लियस। ये क्यों होती है सिग्नेट रिंग अपीयरेंस, जल्दी बताओ। मैम फैट की वजह से यूनिलोकुलर जो उसमें ये होता है कि सारा जो होता है ना, ये स्टेन तो होता नहीं है, स्टेन ठीक नहीं है, होता मैम, न्यूक्लियस बाहर नजर आ रहा होता है। स्टेन होता नहीं है और न्यूक्लियस अंदर पड़ा होता है। फैट के वैक्यूल्स, फैट के लॉक्यूल्स पड़े होते हैं, which these vacuoles they push the nucleus to the periphery, जिसकी वजह से न्यूक्लियस पेरिफेरी पे नजर आता है। ये वो है। फॉरगेट अबाउट दिस 10x, आपने 10x का कुछ नहीं देखा, आपने सिर्फ इसके ये याद करने हैं। लूज एरियुलर, ठीक है, ये सुपरफिशियल फेशिया। इसके एग्जांपल हैंडमेड पिक्चर में आपको पता है कि कनेक्टिव टिश्यू में मैट्रिक्स होता है। आपको मैट्रिक्स में पीछे ग्राउंड सब्सटेंस नजर आ रहा है, ठीक है। साथ आपको पता है कि मैट्रिक्स में आपके पास क्या होता है, फाइबर्स होते हैं, ये फाइबर नजर आ रहे हैं, ये इलास्टिक फाइबर्स हैं, ठीक है। ये सारा कोलेजन जो यूजुअली एग्जिस्ट इन बंडल्स की फॉर्म में होता है बेटा। तो ये देखिए बंडल्स में पड़ा हुआ है। एडिपोसाइट्स हैं, ये आपको फाइब्रोब्लास्ट नजर आ रहे हैं। फाइब्रोब्लास्ट के सिर्फ न्यूक्लियाई नजर आते हैं, फाइब्रोब्लास्ट के जो साइटोप्लाज्म है वो नहीं नजर आता, क्योंकि इसका न्यूक्लियस इतना बड़ा होता है कि यूजुअली वही नजर आता है। और ये देखिए ये आपको ये क्या है, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम कैपिलरीज है, ठीक है। तो आप कुछ भी न्यूज एलुलर बनाओगे तो आपने सब कुछ ये बनाना है, या आपके लिए वो है, इम्पोर्टेंट है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। यही डायग्राम जो है इसके अंदर जब आप बहुत ज्यादा एडिपोसाइट भर दोगे, इन्हीं एडिपोसाइट्स को आप बहुत ज्यादा भर दोगे तो इट विल बी एन एडिपोज। इसमें और एडिपोसाइट्स में कोई सा फर्क नहीं है। ऐसा फर्क है अगर आप बहुत एडिपोसाइट्स भर दोगे सेम में तो दैट विल बिकम एन एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। जी, रेटिकुलर सिल्वर नाइट्रेट स्टेन, जी ये आपको देखिए ब्लैक से जो फाइबर नजर आ रहे हैं ये सारे आपके पास इसके हैं। ये जो ब्लैक फाइबर आप देख रहे हो ये सारे जो हैं रेटिकुलर फाइबर्स हैं आपके पास। रेटिकुलर फाइबर किस लिए होते हैं, स्प्लीन में, लिम्फ नोड्स में, लिवर में, किस लिए होते हैं? बेसिकली सपोर्टिंग के लिए। ज्यादा किसके लिए होते हैं? सपोर्ट के लिए होते हैं। एम्ब्रियोनिक कनेक्टिव टिश्यू, ये आपके पास देखें ये सैटेलाइट stellate cells with processes which might communicate with each other sometimes, and these have a nucleus, ठीक है। और ये पीछे आपके पास ground substance, ठीक है। और ये आपके पास umbilical cord है, उसमें ये umbilical vessels हैं। ये नहीं है टिश्यू, ये म्यूकोइड टिश्यू है दरमियान में जो सारा पड़ा हुआ है। जी बेटा म्यूकोइड टिश्यू का क्या काम होता है umbilical cord में, कोई बताएगा? प्रोवाइड टिश्यू, ये इसका काम ये होता है कि ये एम्बेलिकल वेसल्स को एक तरह से सपोर्ट करता है। जेली होती है, इट्स जस्ट लाइक जेली, तो जेली से सपोर्ट करती है ना, तो ये वेसल्स हैं, ये वेसल्स हैं, उनको सपोर्ट करता है, ठीक है। तो ये है म्यूकोइड टिश्यू, दिस इज द म्यूकोइड टिश्यू। ये तो वेसल्स पड़ी हैं, ठीक है। इलास्टिक टिश्यू, लिगामेंट्स एंड आर्टरीज, ये इलास्टिक आर्टरी है, देखो इसमें इलास्टिक फाइबर आपको वेवी से नजर आ रहे होंगे, ठीक है। ये इसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है, ये इसका क्रॉस सेक्शन या ट्रांससेक्शन है। अच्छा अभी आगे इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, सो मेनी फाइबर्स, कोलेजन फाइबर्स। आप सब कुछ वही बनाओगे जितना लूज में है, लेकिन फर्क ये है कि आप इसमें कोलेजन बहुत ज्यादा डाल दोगे, कोलेजन बहुत ज्यादा पड़ी होगी, बाकी सारा वही होगा जिसमें उसमें सिर्फ आपने कोलेजन ज्यादा डाल देनी है इसमें, बस यही आपने करना है, बाकी इतना इस पे भी मुश्किल नहीं है। और ये आप इसकी डायग्राम देख रहे हो डेंस रेगुलर की, ठीक है। दिस इज डर्मिस, देखो कितना ज्यादा ये कोलेजन फाइबर्स पड़े हुए, ये ब्लड वेसल पड़े हुए और नीचे एडिपोसाइट्स हैं,
टेंडन, ठीक है, ये टेंडन का पार्ट है, ये इसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है जो आप ये देख रहे हो, और ये इसका कट सेक्शन है जो आप ये देख रहे हो, ठीक है, डॉट डॉट से सारे ये आप ये देख रहे हो, जी बेटा, जी बेटा, मैंने आपको जो अभी तक मेन करवाया है, मैंने आपको कुछ पढ़ाया नहीं है, मैंने आपके जो डायग्राम्स हैं उनको आपको रिवाइज करवाया है। जी बेटा, कोई क्वेश्चन इसमें से बताइए। मैम डायग्राम्स हैं ये रिटन पेपर में बनाने के लिए आएंगी? बेटा आ भी सकती हैं, आई हैव नो आइडिया अबाउट मैम व्हाट शी इज थिंकिंग, लेकिन ये डायग्राम रिटर्न में भी बिल्कुल आ सकती है, बिकॉज यू डोंट हैव अ प्रैक्टिकल ऑन कैंपस, तो हो सकता है मैडम दे दें, लेकिन वो इतनी छोटी होगी कि वो आप 2 मिनट में आराम से बना लोगे, 2-4 मिनट में। देखो अगर आपने लूज बनाना है तो वो बनाना है, कनेक्टिव टिश्यूज में क्या है, फाइबर डालोगे, इलास्टिक फाइबर डालोगे, फटाफट फाइब्रोब्लास्ट न्यूक्लियाई डाल दोगे एंड यू आर फिनिश्ड, तो कोई इतनी मुश्किल डायग्राम्स नहीं है ये। और मैम हमारा जो वाइवा है वो 9th को ही है ना, अभी मंडे वाले पेपर के साथ तो वाइवा नहीं ना होगा? मंडे वाले पेपर के साथ नहीं, मेरे ख्याल से बेटा वाइवास आपके भी अलग था, ये वाइवा अलग ही कर दिए थे, क्योंकि उसमें एक बात ये भी थी ना कि 3 घंटे पेपर अटेम्प्ट करने के बाद स्टूडेंट्स यूजुअली वो इतने लॉस्ट हो जाते हैं कि वो ज़ाहिर बात है वाइवा में बेटा बहुत अच्छी तरह पेयर शायद होते हैं ना, आप थक जाते हो ना। अच्छा जी, जी ग्लैंड्स की क्लासिफिकेशन भी कुछ आती है, कौन से 2 टाइप के ग्लैंड्स होते हैं जी बेटा? एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन जो भी उनकी सिक्रेशन होती है, जिस तरह आपने देखा है कि आपके घर में स्प्लिट एयर कंडीशनर्स लगे हुए हैं, तो जस्ट सपोज कि स्प्लिट एयर कंडीशनर जो है उसके अंदर जो बेसिकली आपको जो उसका एयरिंग यूनिट है वो अंदर हवा दे रहा है, दैट इज बेसिकली वर्किंग जो है आपकी उसकी है वो दे आर एसएनआई या वो सेल्स हैं। उसके बाद उनकी जो डक्ट है बेसिकली वो जो बाहर से पानी निकल रहा है दैट इज लाइक अ डक्ट व्हिच ओपन्स आउटसाइड। तो इसी तरह ही एक्सोक्राइन ग्लैंड्स की भी एक डक्ट होती है जो कि सरफेस पे खुली है सो दैट दे कैन पोर द सिक्रेशन आउटसाइड लाइक सलिवरी ग्लैंड्स। उन्होंने बाहर निकालना है सलाइवा, उन्होंने अंदर रख के सलाइवा को कुछ नहीं करना। सलाइवा का काम मुंह के अंदर टिश्यू के अंदर कुछ नहीं है, बाहर निकालोगे तो काम करेगा। एंडोक्राइन ग्लैंड्स they release their secretions directly into blood, जिससे आपके पास थायराइड ग्लैंड है, ठीक है, थायराइड ग्लैंड है, पिट्यूटरी है, वो सारे करते हैं कि जैसे ही उनकी सिक्रेशन बनती है वो फौरन साथ ही कैपिलरीज पड़ी हुई है, कैपिलरीज उसको फौरन एब्जॉर्ब करके ब्लड में ट्रांसफर कर देती हैं और वो जहाँ भी बॉडी की जरूरत होती है उनको वहां पे ले जाता है। सो बेसिकली एंडोक्राइन ग्लैंड्स वर्क थ्रू ब्लड। आप जब कभी एंडोक्राइन सेकेंड ईयर में बनाओगे यू विल सो मच ब्लड वेसल्स इन दैट, बिकॉज वो ब्लड वेसल से काम कर रहा है। जी ग्लैंड्स एक्सोक्राइन एंडोक्राइन है, एंडोक्राइन को हम भूल जाते हैं, हमने अभी नहीं करना। एक्सोक्राइन में 2 किस्म के आते हैं, एक यूनिसेलुलर ग्लैंड। कैन यू टेल मी व्हाट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ यूनिसेलुलर ग्लैंड? गॉबलेट सेल्स। गॉबलेट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताऊं कि मैं आपको बल्कि इसकी एक स्लाइड दे देती हूँ, इसलिए क्योंकि ये जो है ना जरूरी है। बेस्ट एग्जांपल of unicellular gland is goblet cell, ठीक है, ये आपको उसमें भी आ सकता है, क्या कहते हैं एमसीक्यू में भी आ सकता है, या आपको वैसे बनाने को आ सकता है कि अच्छा जी बनाएं कौन सा यूनिसेलुलर ग्लैंड है। अच्छा जी, उसके बाद आपके पास मल्टी सेलुलर ग्लैंड्स हैं जिसमें की क्लासिफिकेशन ये है, स्ट्रक्चरल, नेचर ऑफ सिक्रेशन एंड मोड ऑफ सिक्रेशन। ठीक है, स्ट्रक्चरल जो है पहले अगर वो हम कर रहे हैं तो पहले आपको वही दिखाती हूँ मैं कि उसमें 2 बातें होती हैं जब आप स्ट्रक्चर की बात करते हो, तो उसमें डक्ट कैसी है। अगर डक्ट एक है दैट वुड बी सिंपल, अगर डक्ट ज्यादा है एक से तो दैट वुड बी अ कंपाउंड। जी क्लास,
स्ट्रक्चरल में आपके पास क्या बात आ जाती है सबसे पहले, डक्ट सिस्टम की, ठीक है, और मॉर्फोलॉजी ऑफ द सेक्रेटरी पोर्शन जिसको हम एसएनआई कहते हैं, ठीक है। अगर वो ट्यूब की तरह है तो ट्यूबुलर ग्लैंड है, अगर वो गोल से पड़े हुए हैं तो दैट वुड बी एसएनआर ग्लैंड, अगर वो इन दोनों का मिक्स है दैट विल बी ट्यूबुलो एसएनआर। ये मैं आपको इसकी डायग्राम दिखा देती हूँ जी क्लास जी। इसकी एक ही डक्ट है, दिस इज डक्ट एंड दिस इज द सेक्रेटरी पोर्शन जी। ये ट्यूबुलर शेप है या एसएनआई शेप है? एसएनआई यूजुअली गोल इस तरह के होते हैं जी। क्या है ये? ट्यूबुलर है। अच्छा, सबसे पहले तो ये डिसाइड करो ये सारी सेल है कि कंपाउंड है? सिंपल क्यों है ये? सिंपल क्यों है ये? एक डक्ट सिंगल है, डक्ट। एक डक्ट एक है। डक्ट। इसकी क्या है कि इसकी भी एक डक्ट है लेकिन आगे आके डक्ट डिवाइड हो गई या ब्रांच्ड हो गई, ब्रांचेस। ठीक है ना। सो दिस इज अ कंपाउंड ग्लैंड, सो दिस इज अ सिंपल ट्यूबुलर, ठीक है। दिस इज अ सिंपल कॉइल्ड ट्यूबुलर, कॉइल हुआ है थोड़ा सा। ये एसएनआई है, एल्व्यूलर या एसएनआर एक ही बात है, ठीक है। ये सिंपल एसएनआई है, ठीक है। ये सिंपल क्योंकि डक्ट एक ही है, सिंपल ब्रांच्ड ट्यूबुलर, सिंपल ब्रांच्ड एसएनआर। सिंपल ब्रांच्ड एसएनआर से क्या मतलब है कि एसएनआई डिवाइड हुए, डक्ट एक ही है, ठीक है, एसएनआर डिवाइड हुए, ठीक है। इसी तरह ही कंपाउंड ट्यूबुलर, यहाँ पे ट्यूब्यूल्स हैं सारे, कंपाउंड एसएनआई और कंपाउंड ट्यूबुलो एल्वेओलर, ठीक है। इसमें डक्ट भी मल्टीपल हो गई है और ट्यूब्यूल्स भी मल्टीपल हो गई है, सब मल्टीपल हो गया, ठीक है। तो आपने नंबर 1 डक्ट की बेस पे नहीं है कि डक्ट जो है वो सिंगल है तो सिंपल है, अगर डक्ट ब्रांच है तो कंपाउंड होगी, और उसके बाद आपने उसकी सेक्रेटरी पोर्शन देखना है। ट्यूबुलर शेप है, सिंगल है तो सिंपल ट्यूब्यूल है, अगर ट्यूब्यूल डिवाइड हो रही है तो ब्रांच्ड है, ठीक है क्लास जी। क्लास nature of secretion, it could be mucus, it could be serous. Mucus mean carbohydrates or glycoproteins, serous mean proteinaceous, mixed मतलब है सीरो म्यूकस दोनों आ जाएंगे। लिपिड सिक्रेटिंग यानी कि लिपिड सिक्रेट कर ऐसा सेबेशियस ग्लैंड हो गया, एड्रिनल ग्लैंड हो गया, ठीक है। अब हम नेचर ऑफ सिक्रेशन भी पढ़ते हैं कि सेल्स कौन कौन से हैं। मोड ऑफ सिक्रेशन, मीरोक्राइन, एपोक्राइन, होलोक्राइन, ये भी हम पढ़ते हैं। अब हम ये दोनों आपको जल्दी से रिवाइज करवाते हैं। सेल टाइप्स, सेल टाइप इन ग्लैंड्स, म्यूकस सेल होंगे, सीरस सेल होंगे, लिपिड सिक्रेटिंग सेल होंगे और आयन ट्रांसपोर्ट सेल होंगे। नंबर 1 सीरस सेल जी, क्या काम है सीरस का, जल्दी बताओ। Protein secretion. Secreting water and protein. Water secretions with proteins. Proteins, full of proteins, that could be enzyme or that could be hormones, ठीक है। अच्छा, अभी होता क्या है, मैं आपको इसकी अगली डायग्राम दिखाती हूँ। एक्चुअली दैट इज अ पिरामिडल शेप सेल, पिरामिडल शेप सेल होता है which usually exist in groups। ये सेल एक है, ये दूसरा सेल है, ये तीसरा सेल है, ये आपस में इकट्ठे पड़े हैं, दरमियान में इनके क्या है, जंक्शंस हैं। क्या है, जंक्शंस हैं, ठीक है। ये यूजुअली ग्रुप में पड़े होते हैं, 6 to 8 सेल के ग्रुप में। न्यूक्लियस कहाँ देख रहे हो उसका जी, राउंडेड न्यूक्लियस है थोड़ा सा, ठीक है। उसके बाद आप क्या देख रहे हो यहाँ पे इतना ज्यादा, क्या पड़ा, व्हाट इज दिस दैट यू आर वाचिंग सो मच द बेस, व्हाट इज दिस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आपने क्या नहीं भूलना कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत ज्यादा होता है, कितना ज्यादा है, ठीक है। लेकिन देखो माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी एपरेटस इसी तरह ही है। उसके बाद टॉप पे देख रहे हो, जल्दी बताओ, सिक्रेटरी ग्रेन्यूल्स हैं, सिक्रेटरी ग्रेन्यूल्स हैं। ये ग्रेन्यूल में क्या होगा, क्या भरा होगा जो बाहर सिक्रेट हो रहे हैं अभी, तो क्या भरा होगा, प्रोटीन्स होंगे ना। सो दिस इज मेनली इन्वॉल्व्ड इन व्हाट, मेकिंग ऑफ व्हाट, ये क्या बना रहा है बेसिकली,
secretory proteins. So whichever cell is involved in protein making that has a lot of Endoplasmic reticulum. and endoplasmic reticulum gives which color to the cell? Is it create an acidophilic color or basophilic color? Basophilic. Basophilic color. Excellent. It's the endoplasmic reticulum, whenever it is present in abundance in a cell, it gives you a bluish appearance or a basophilic color. So the base of the cell would be basophilic, and the top of the cell would be Acidophilic. because it has proteins, and proteins they Proteins. contain Acidophilic. acidophilic. Acid. ठीक है, ये क्लियर हो गया. ये एक सेल है, सेल नंबर 1, सेल नंबर 2, सेल नंबर 3. इनके दरमियान में जंक्शंस हैं. जाहिर बात है आपने अगर अच्छी तरीके से एक दूसरे को पकड़ना है, आपने एक दूसरे को सपोर्ट किए हैं, तो यू विल शेक हैंड वेरी टाइटली. सो इसमें जंक्शंस है फॉर द सपोर्ट. एंड व्हाट डू यू सी हियर? व्हाट इज दिस? ये आप क्या देख रहे हो? इंटरसेल्युलर कैनालिकुलाई. ये क्यों होता है इंटरसेल्युलर कैनालिकुलाई? कुछ पता है? ये दो सेल के दरमियान आपको कैनाली लग रही है, दो सेल के दरमियान गैप सा लग रहा है थोड़ा सा. क्यों है ये? जहाँ पे ये फोल्डिंग सी आती है, इसका क्या मतलब है कि हम सेल को क्या करना चाह रहे हैं? सेल का क्या इंक्रीज करना चाह रहे हैं? सरफेस एरिया. ठीक है, ताकि उसकी सिक्रीशन ज्यादा से ज्यादा हो. वो सिक्रीशन ऊपर से भी कर रहा है, वो सिक्रीशन साइड से भी कर रहा है. यहाँ पे साइडों पे पोर कर रहा है, लैटरल साइड पे, और वो बाहर जा रही है, वो बाहर जा रही है. जी, आपको क्लास इस चीज समझ आ गई? ठीक है. इसमें क्या है? इंटरसेलुलर कैनाल्स हैं जो कि सरफेस एरिया ज्यादा कर रही है लैटरल साइड पे. जी, ये कौन सा है एसएनआई बताएंगे? अगर ये सीरस है तो ये कौन सा है? म्यूकस. ये कौन सा है? म्यूकस. इसका न्यूक्लियस कैसा है बेचारा? ये दब के कैसा हो गया है? फ्लैटेंड हो गया. ठीक है. और ये क्या है सारा? ये क्या पड़ा हुआ है? म्यूसिन. ये खाली खाली क्यों है? क्योंकि म्यूसिन स्टेन नहीं वॉश आउट हो गया. नहीं लेता. म्यूसिन स्टेन नहीं लेता. ठीक है. सेल के दरमियान एक सेल है, ये सेल की बॉर्डर लाइन है दूसरे सेल की. सेल के दरमियान जंक्शंस है. एंड डू यू सी इंटरसेल्युलर कैनालिकुलाई ओवर हियर? No. Do you appreciate No, ma'am. intercellular no, there is no intercellular canaliculi, but junctions are there. जंक्शन तो हमेशा होंगे. जहाँ दो बहुत क्लोज फ्रेंड्स होती हैं, हमेशा वो जी शेक टाइटली करती हैं हमेशा हैंड्स के. अच्छा जी, हम एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे, इस तरह उन्होंने पकड़ना होता है ताकि आपस में सपोर्ट रहे. ठीक है. फ्रेंड्स भी आपस में रखती हैं ताकि जी काम आ सके जरूरत के वक्त. और वो जरूरत क्या होती है? क्यों बेटा? जी, अच्छा, इसमें ये बात हुई. अब आपको इधर आते हैं. ये आप देख रहे हो, ये सीरस सेल है, ये तो बेसल बेसोफिलिया है, न्यूक्लियस उसके अंदर है, और ये एपिकल रीजन पिंक है. ये नजर आ रहा है आपको? जी बेटा, नजर आ. ठीक है. ये बेसल रीजन हैड राउंड न्यूक्लियस. बेसल रीजन हैड अबंडेंट आरईआर. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ड्यू टू व्हिच इट स्टेन्स ब्लू. Apical region has amogen or proteins, so apical region is acidophilic. Pyramidal cell or low corner cell with flattened nuclei. हमने पढ़ा था flattened nuclei है. ऐसा नहीं होता, flattened होता है, जैसे मैंने आपको पहले दिखाया था. अच्छा जी, उसके बाद stain poorly because mucus do not take H&E stain. अच्छा जी, जंक्शनल कॉम्प्लेक्सेस हैं, नो इंटरसेलुलर कैनालिकुलाई, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में. ठीक है. ये आप इसमें काम होता है. ये देखें, जब हम बनाएंगे तो हम ऐसे बनाएंगे. ठीक है. यहाँ पे ये हम थोड़ा सा ब्लू स्टेन देंगे टू शो द बेसोफिलिया, और यहाँ पे ऊपर आप ये पिंकिश स्टेन देंगे. ये एरिया. ये कितने सेल हैं? 1 2 3 4 5 6 7. ये कौन से सेल हैं? कौन से सेल हैं ये? सीरस. सीरस.
सीरस सेल्स हैं। ये देखें, बेसल बेसोफिलिया, बेसल बेसोफिलिया, और ऊपर जाइमोजिन ग्रेन्यूल जिसकी वजह से ज्यादा पिंक है, ठीक है। और म्यूकस सेल ये देखें, खाली बेस और सारा खाली है, सारा क्या है, एम्प्टी है। जी, तीन टाइप के सेल, हमने कौन से टाइप के सेल पढ़ लिए, सेल ट्रांसपोर्ट, सॉरी सीरस सेल, म्यूकस सेल, और अब हम कौन से देख रहे हैं, तीसरे नंबर के सेल कौन से हैं, आयन ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट के सेल, जो कि आपके पास मैम आते जो हैं। जाइमोजन ग्रेन्यूल्स होते हैं उनके अंदर जो है एंजाइम्स होते हैं। एंजाइम्स भी हो सकते हैं, जैसे हमारे स्लाइवा में, अब आप बायोकेमिस्ट्री में आपको ज्यादा आइडिया, कौन सा हमारा होता है एंजाइम, अमाइलेज होता है, पता नहीं, यस मैम, अमाइलेज होता है ना, अमाइलेज। हाँ, so that is a enzyme, प्रोटीन है ना, एंजाइम है। Not every enzyme is protein in nature, not necessarily, हो सकता है कोई और भी नेचर के होते हो, और मुझे बायोकेमिस्ट्री का मुझे बहुत आइडिया नहीं है जी। सेल इन्वॉल्व इन आयन ट्रांसपोर्ट, intestines and proximal convoluted tubules, ठीक है। इसमें अब आप एक नई चीज देख रहे हो, ये एपिकल पोर्शन है, ये बेसल पोर्शन है, ठीक है। ये सेल 1 है, ये सेल 2 है, ये सेल 3 है, तो उनके दरमियान एक तो आप जंक्शंस देख रहे हो, ठीक है। अच्छा, अब और क्या चीज आप इनका ऑब्जर्व कर रहे हो, ये क्या चीज है यहाँ पे जो बहुत ज्यादा हो गई है, व्हाट इज दिस, माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज्यादा है। और ये क्या हुआ है, ये बेस, जो उसकी बेसल एरिया है, दैट इज सो मच फोल्डेड, दैट इज सो मच फोल्डेड, और उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया अलाइन हुए हैं लॉन्गिट्यूडनली, दिस इज व्हाट यू कॉल बेसल इनफोल्डिंग्स, बेसल इनफोल्डिंग्स। बेसल इनफोल्डिंग्स उन सेल्स में होती है जो कि पता है सेल बहुत ज्यादा हर वक्त एक्टिव एक काम में मसरूफ है, जिसका सेल ट्रांसपोर्ट, जो आयन ट्रांसपोर्ट होते हैं, इनके अंदर पंप्स होते हैं, सोडियम पोटेशियम पंप्स होते हैं, और वो हर वक्त काम कर रहे होते हैं, और उसके लिए आपको बहुत एनर्जी की जरूरत है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो वहाँ पे नीचे अलाइन कर लेते हैं पंप को, क्योंकि पंप्स नीचे लगे होते हैं, ताकि जो भी है, आई मीन ये तो मुझे नहीं पता नीचे है के ऊपर है, लेकिन पंप्स जो है उनको खोलने के लिए, गेट्स को खोलने के लिए, बंद करने के लिए हाई लेवल ऑफ एनर्जी इज नीडेड, सो दे हैव सो मेनी माइटोकॉन्ड्रियाज इन द बेसल पार्ट, ठीक है। उसके बाद ये आपने याद रखना, सेल इन्वॉल्व इन आयन ट्रांसपोर्ट, उनका सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, बेसल इनफोल्डिंग्स है, ठीक है। उसके बाद एक ब्रश बॉर्डर आपने पढ़ा था, ब्रश बॉर्डर यहाँ पे दिखाया नहीं हुआ, लेकिन ब्रश बॉर्डर का मतलब क्या है, तो माइक्रोविलाई भी हैं ताकि उनका एब्जॉर्प्शन एरिया ज्यादा हो जाए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एपिकल कैनालिकुलाई का मतलब है कि ये जो आप दोबारा पार्ट्स देख रहे हो, कैनाल्स हैं, ठीक है। इनका काम अगेन क्या होता है, सेल के सरफेस एरिया को ज्यादा करना, ठीक है। सो दिस आर द सेल व्हिच इज इन्वॉल्वड इन आयन ट्रांसपोर्ट। तो सबसे मेन फीचर आप क्या लिखोगे, जल्दी बताओ, क्या लिखोगे, Basal folding mitochondria. basal foldings in which mitochondria are trapped in longitudinal axis, और इसके अलावा ब्रश बॉर्डर है, ठीक है। A and B याद रखो, A for apical canaliculi, B for basal infoldings and brush border। जी, नंबर 4 टाइप ऑफ सेल्स, स्टेरॉइड सिक्रेटिंग सेल्स। क्या देख रहे हो, इसमें लिपिड वैक्यूल्स हैं बहुत ज्यादा, एंड लॉट ऑफ, जो स्टेरॉइड सिक्रेटिंग सेल होते हैं या लिपिड सिक्रेटिंग सेल्स होते हैं, उसका सबसे मेन पार्ट क्या होता है कि उसमें क्या होता है, बहुत ज्यादा कौन सा एबंडेंट होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लिपिड ड्रॉपलेट्स। नंबर 3 पार्ट, ट्यूबुलर माइटोकॉन्ड्रिया। देखो कितने सारे माइटोकॉन्ड्रिया हैं, इतने माइटोकॉन्ड्रिया पड़े हैं, और सारे क्या हैं, ट्यूब्यूल शेप है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया के में 4 टाइप्स होती है, एक ट्यूबुलर होती है, और दूसरी पता नहीं मेरे ज़हन से निकल गई है कि किस तरह के उनके शेप होते हैं, क्रिस्टी जो उनके होते हैं ना माइटोकॉन्ड्रियास के। तो आपके पास क्या है, ट्यूबुलर माइटोकॉन्ड्रिया है, और सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या बताओगे, बिल्कुल, ये आपने नहीं भूलना। और जो आपके पास प्रोटीन सिक्रेटिंग था, उसमें कौन सा था, Rough रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। अच्छा, इसको मैं साइड को रहने देती हूँ, उसको हमें जरूरत नहीं है।
अच्छा ये भी आप देख लिया, ये भी मैं कट कर देती हूँ, उसकी भी जरूरत नहीं है। एक चीज मैं पूछना चाहूंगी जो इम्पोर्टेंट मुझे लगती है, व्हाट इज स्ट्रोमा एंड पेरेन्काइमा? जी ये बताएं मुझे कुछ ग्लैंड्स में, जल्दी बताएं। स्ट्रोमा स्पोर्टिंग के लिए होते हैं और पैरेन्काइमा और सेक्रेशन के लिए। पैरेन्काइमा वेरी गुड, फंक्शनल होता है। वेरी गुड। एज फॉर स्ट्रोमा, पैरेन्काइमा फंक्शनल सेल्स होते हैं। as for trauma, as for support, ये आपने नहीं भूलना, बच्चों को बाज़ दफा इसका नहीं पता था। और पेरेन्काइमा जो है इज द मेन फंक्शनल पार्ट, फंक्शनल पार्ट, ठीक है। यानी कि आपके पास जो उसके एसएन आए हैं, ठीक है, जो उसके सेल्स जो काम कर रहे हैं, ठीक है। अब अगर मैं आपको ये बताती हूँ तो देखिए ये इसका बहुत ज्यादा फंक्शनल पार्ट है, ठीक है। ये भी फंक्शनल पार्ट है सारा, डक्ट पूरा ये भी फंक्शनल पार्ट है, लेकिन ये सबसे ज्यादा फंक्शनल पार्ट है पेरेन्काइमा, ठीक है जी। अच्छा अब हमारे पास आते हैं डक्ट सिस्टम इसका, ठीक है। आपके पास ये है, ये कौन से सेल है जल्दी बताओ, ये कौन से एसिनस है? म्यूकस है, सीरस है? सीरस सीरस कैसे पता चला? मैम pyramidal shape. बेटा शेप से सिर्फ अंदाजा लगाया, और क्या चीज है इसमें? मैम मैम नीचे से बेसोफिलिक है और बस ऊपर से zymogen उसके ढेर सारे granules हैं, ग्रेन्यूल। बिल्कुल zymogen granule है, राउंडेड न्यूक्लियस है। म्यूकस का फ्लैट न्यूक्लियस होता है, और नीचे आप देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बेसोफिलिक है। ठीक है ना, नहीं, प्लाज्मिक बेसोफिलिक। रेटिकुलम है। अच्छा जी, उसके बाद आपका डक्ट सिस्टम आता है। सबसे पहले एसएनएस से जो सबसे पहली डक्ट निकलती है, दैट इज व्हाट यू कॉल इंट्रालोब्यूलर। इंट्रालोब्यूलर का मतलब क्या होता है? इंट्रालोब्यूलर का मतलब क्या होता है? कि वो लॉब्यूल के Within the अंदर है, lobules. विद इन द लॉब्यूल, ठीक है, विद इन द लॉब्यूल, ठीक है। उसके बाद उसकी पास दो टाइप्स आती हैं, इंटरकलेटेड एंड स्ट्राइएटेड, इंटरकलेटेड एंड स्ट्राइएटेड, ठीक है। इंटरकलेटेड क्यूबॉइडल होती है, और स्ट्राइएटेड जो होती है लो कलमनर सेल्स होते हैं विद लॉट ऑफ माइक्रोविलाइज, ठीक है। उसके बाद आपके पास सेकंड आती है इंटरलॉब्यूलर। कौन सी आती है? इंटरलॉब्यूलर, यानी कि दो लॉब्यूल्स के दरमियान में, अब दो लॉब्यूल्स के दरमियान में वो सूडो भी होती है। उसके बाद आपके पास आती है इंटरलोबार, अब लोबार में आ गई है। लॉब्यूल्स होती है, आयशा प्लीज आहिस्ता बात करिए आप जी। आपके सबसे पहले मुझे बताएं व्हाट इज अ लॉब्यूल, मुझे पहले लॉब्यूल का बताएं आप जी, व्हाट इज अ लॉब्यूल? लॉब्यूल क्या है बेटा, व्हाट इज अ लॉब्यूल? मैम मैम एक convoluted जाकर ये जब देखें, दिस इज अ और divide लॉब्यूल, होते हैं तो this is a lobule, exactly, this is a lobule which is bounded or which has a straight connective tissue जो उसकी border line form कर रहा है। This is a lobule, a small lobule is just like a small kitchen, ठीक है। एक अगर घर में बहुत सारे किचन है तो every kitchen has walls which form the boundaries of the lobule। तो एक सेल में बहुत ज्यादा lobules होते हैं। Let me see कि मेरे पास इसकी बिल्कुल होगा मेरे पास, ये देखें, this is one lobule which is boundary by connective tissue, this is second lobule जो connective tissue से बाउंड कर, ठीक है। ये सारी ये देखें, ये एक और lobule पड़ा हुआ है, ठीक है। अब आप इसमें देखें, ये lobules हैं, ठीक है। तो लॉब्यूल कैसे फॉर्म होते हैं? कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं उसको बाउंड्री बॉर्डर लाइन पे फॉर्म कर देते हैं, उसके बॉर्डर पे कनेक्टिव टिश्यू होते हैं और वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। सो अ ग्लैंड हैज सो मेनी लॉब्यूल्स, वन लॉब्यूल, टू लॉब्यूल, थ्री लॉब्यूल्स, फोर लॉब्यूल्स, ठीक है जी। तो आर दीज लॉब्यूल्स हिस्टोलॉजिकल सीन, या आपको नेकेड आई से भी देख सकते हो जी? मैम histologically seen. एग्जैक्टली, लॉब्यूल्स जो हैं हिस्टोलॉजिकली बेसिकली आपको नजर आते हैं, और लोब्स आप सामने से देख सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास सबसे पहले दिस इज व्हाट, ये मैं क्या कर रही हूँ, दिस इज अ क्या है, ये लॉब्यूल है। सबसे पहले ये A1 लॉब्यूल 1 है, ये लॉब्यूल 2 है।
सो सबसे पहले इंट्रालोब्यूलर यानी लोब्यूल के अंदर डक्ट होगी जो कि इंटरकलेटेड, और दूसरी होगी आपके पास क्या कहते हैं स्ट्राइटेड। फिर आपके पास ये जो दरमियान में एरिया है जिसको हम इंटरलोब्यूलर कह रहे हैं, इंटरलोब्यूलर डक्ट यहाँ पे होगी। उसके बाद लोबा में 2 लोब्स के दरमियान डक्ट होगी और उसके बाद फिर वो क्या होगा, बाहर जाएगी। सही है, तो आपको डक्ट सिस्टम जो है आपने ध्यान में रखना है। इंटरलोब्यूलर से दोबारा बता। जी बेटा क्या कह रहे हो? जी क्लास। इंटरलोब्यूलर और लोबार में दोबारा बता दें। बेटा लोब्यूल्स जो होते हैं ना, दे आर द एक्चुअली स्मॉल areas which are formed by the connective tissue septa। जो ग्लैंड, जो आपके पास कोई भी ग्लैंड होता है ना, ग्लैंड में मोस्टली बाहर कैप्सूल होता है। कैप्सूल जो होते हैं कनेक्टिव टिश्यू अंदर फेंकता है, और कनेक्टिव टिश्यू जो होता है उसको छोटे छोटे लोब्यूल्स में डिवाइड करता है। इट्स जस्ट लाइक अब्दुल इब्राहिम, यू आर बॉदरिंग मी बेटा, आप अंदर चले जाए। अच्छा, अब आपका इस तरह से आपने एक इमरजेंसी देखी होगी हॉस्पिटल की, कि आप जस्ट इमरजेंसी की जो पूरी दीवारें हैं वो सारा एक कनेक्टिव टिश्यू कैप्सूल है। तो उसके अंदर से पर्दे उन्होंने इतने लटकाए होते हैं कि हर जगह पे छोटे छोटा लोब्यूल्स बन जाते हैं, छोटे छोटा एक्टिविटी एरिया बन जाते हैं। एक तरफ पेशेंट किसी को ऑक्सीजन दी जा रही होती है, एक तरफ किसी पेशेंट को एनजी पास कर रहे हैं, किसी को इंजेक्शन लगा रहे हैं, तो वो कितने सारे लोब्यूल्स में चेंज हो जाता है। आर यू गेटिंग पॉइंट? यस मैम। ठीक है, सो बेसिकली लोब्यूल्स आर फॉर्म्ड बाय कनेक्टिव टिश्यूज। कनेक्टिव टिश्यूज को बॉर्डर दे देता है और कनेक्टिव टिश्यू के अंदर अंदर बहुत सारे सेल्स और सब कुछ पड़ा होता है। इट्स जस्ट लाइक अ स्मॉल किचन व्हिच हैज इट्स ओन यूटेंसिल्स, व्हिच हैज इट्स ओन वॉशिंग एरिया। हर चीज पूरा जो है उसका पूरा एक काम वहाँ पे हो रहा होता है। लोब्यूल के अंदर आपके पास सब कुछ होता है, सेल्स भी होंगे, डक्ट भी होंगी, सारा वहाँ पे काम चल रहा होगा। इन रेलिवेंट टू द अदर पार्ट, अदर लोब्यूल, एक लोब्यूल हो सकता है अभी प्रिपेयर हो रहा है तो दूसरे लोब्यूल में प्रिपरेशन हो चुकी हो। जगह डिफरेंट काम चल रहे होते हैं, डिफरेंट लेवल के काम चल रहे होते हैं। ठीक है बेटा, सो आपने इंटरलोब्यूलर, या में आपको सेकंड ईयर में और बेहतर समझ आ जाती है। सेकंड ईयर में मैंने आपको बताया ना, ये ग्लैंड्स है, ये आप देख लेना मैडम की, वो है उसमें था जी। इंपॉर्टेंट चीज, सबसे इंपॉर्टेंट जी, अकॉर्डिंग टू मोड ऑफ सिक्रेशन कौन से हैं, जल्दी बताएं। जी बेटा। मीरोक्राइन, एपोक्राइन, होलोक्राइन। जी, अब याद रखें, मैं इसको इस तरह हमेशा बच्चों को बताती हूँ। मीरोक्राइन, मी यानी माई सेल्फ, मीरोक्राइन, आई एम स्टेबल, मुझे कुछ नहीं हुआ, मीरोक्राइन, आई एम एब्सोल्युटली ओके, सो नो पार्ट ऑफ द सेल इज लॉस्ट। ठीक है, सब जो आपके पास वो जो प्रोसेस होता है पिनोसाइटोसिस या ट्रांससाइटोसिस, उसके थ्रू जो है ना आपके पास जो सेल बनाता है ना वो बाहर चला जाता है। नो पार्ट ऑफ द सेल इज लॉस्ट द सिक्रेशन। ठीक है, लाइक सिलिवरी ग्लैंड्स आपके पास आ गए। एपोक्राइन, एपो मींस एप, एप मीन एपिकल एरिया, एपिकल एरिया। इसमें क्या होता है कि द एपिकल पोर्शन ऑफ द सेल is being pitched off, निकल जाता है सेल के साथ, and it is lost along with the secretions। ठीक है क्लास। Me mean कि I am myself stable, apo mean कि जो apical portion है वो it is lost with the secretion and becomes a part of the secretion। Holocrine, whole cell, whole cell becomes a part of the secretion and it dies by apoptosis and it detaches। सारा जो सेल है वो टूट जाता है and becomes a part of the secretion। जी क्लास, यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो आपने इसका जो है बस खत्म हो गई स्लाइड्स हमारी। ठीक है, ये हमने एक क्विक रिव्यू कर लिया है इसका जो है। अब मैं आपको इसकी स्लाइड्स भेज देती हूँ। ठीक है, तो आपने इसकी वो जरूर करनी है, क्लासिफिकेशन जरूर करनी है आपने, बहुत पूछी जाती है। और आपको
सेल्स की सिक्योरिटी पार्ट बहुत पूछे जाते हैं और आपने सेल्स की टाइप पढ़ लेने। 4 सेल कौन से किए हैं? सीरस, म्यूकस, लिपिड सिक्रेटरी और आयन ट्रांसपोर्ट के सेल, ठीक है। बस Excuse me, ये है मैम। जी बेटा, जी जी। मैम हमारे पास हिस्टोलॉजी की कोई भी स्लाइड्स नहीं है, तो मैम आपके पास अगर अवेलेबल हैं तो वो सेंड कीजिएगा सारी, क्योंकि मैम अभी तक नहीं शेयर की थी कोई भी। बेटा आप लोगों ने डॉक्टर नाजरीन से मांगी क्यों नहीं? मैम वो कह रही थी कि मुझे अभी तक ना सेंड करनी नहीं आ रही। मैम उन्हें तरीका नहीं आता सेंड करने का, तो मैम इसलिए। तो वो उसको कह रही थी, उनका जो वो है साथ कंप्यूटर वाला बंदा होता है, आप उनसे ऐसा करो एक दफा मांग लो, उनसे कहो कि वो मेरे पास तो क्योंकि उनकी नहीं है जो है मैम कुछ गूगल क्लासरूम पे भी हैं। मेरे पास कनेक्टिव टिश्यू की है, कनेक्टिव टिश्यू की बहुत अच्छी बनी हुई है, अगर कनेक्टिव टिश्यू को कहते हैं वो मैं भेज सकती हूँ। मैम एक ये वाली भी भेज दें आप, काइंडली Yes, कनेक्टिव ma'am. टिश्यू की है तो मैम वो भी ये वाली भेज प्लीज भेज दीजिएगा। नहीं नहीं, ये तो मैं आपको भेज रही हूँ और इसके आगे मैं आपको थैंक कुछ यू मैम, जरूर भेज दीजिएगा। मैंने डॉक्यूमेंट बनाया था लास्ट ईयर जो कि हमने क्विक एक रिवीजन के क्वेश्चंस कुछ कहे थे, आपको मैं वो भी भेज रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें उसमें लिखी हुई हैं। मैं लेकिन पढ़ाने का टाइम नहीं था। देखिए आज मैंने आपको पढ़ाना नहीं था, मैंने आप उन चीजों से गो थ्रू करवाना था और मैडम ने मुझे कहा था कि बच्चों को सारी स्लाइड्स रिवाइज कराओ, और ये मैंने इतनी मुश्किलों से गैदर किया ना, इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू गैदर फ्रॉम आई पिक्ड अप वन थिंग फ्रॉम सम अदर प्लेस और एक दूसरी चीज उधर से उठाई, or I mean it was very hard for me to gather each and every part of this presentation. Thank you तो so much ma'am, it really means a lot. नहीं नहीं कोई मसला नहीं बेटा, वो तो लेकिन बहुत ज्यादा था और मेरे लिए मुश्किल हो रहा था, इसलिए मैंने बहुत सिर्फ हाईलाइटर आपको किया है। इसमें अंदर this presentation will not help you exactly to to attempt your questions because इसमें कुछ इतना लिखा नहीं हुआ। This might help you to for your MCQs, लेकिन ये आपको SCQ में हेल्प इतना नहीं कर सकेगी, क्योंकि तो आपको सिर्फ एक मेन हाईलाइट दिया है, मेन आपको मैंने एक सिर्फ एक बूस्ट दिया है, मैंने आपको एक किक दिया है मैंने आपको हिस्टोलॉजी के लिए बेसिकली, तो आपको बाकी बुक से पढ़ना है, ये ध्यान में रखें। बाकी मैं आपको कनेक्टिव टिश्यू की स्लाइड शेयर कर रही हूँ। मैं आपको जो मैंने एक और क्वेश्चंस बनाए हुए हैं अपने बहुत जरूरी, जिसमें आपके पास एक चीज और आपने सेल में, मैं आपको बता देती हूँ सेल में आपने क्या चीज नहीं छोड़नी। सेल में जो है आपने सेंट्रियोल्स, वो जो है आपके पास एक्सोनीम जो सीलिया का स्ट्रक्चर है, Cytoskeleton. साइटोस्केलेटन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और उसमें एक्सोनीम बहुत पूछा जाता है। एक्सोनीम जो है वो क्या है, जिसमें वो आपके पास विद द 9 डबलेट्स और एक सेंट्रल में सिंगलेट, वो कार्टनर सिंड्रोम, जिस तरह वो जो इमोटाइल सीलिया सिंड्रोम और वो जो इनफेरिटी जो कॉज करता है वो बहुत पूछा जाता है। इसके अलावा आपके पास ये सेल का मैं आपको बता रही हूँ, और साइटोस्केलेटन की क्लासिफिकेशन जो कि मेरे जहन में भी नहीं आ रही, जिसमें इंटरमीडिएट था और पता नहीं न्यू फिलामेंट्स थे और इस तरह कुछ करके था, वो आपने करनी है। साइटोस्केलेटन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लेट मी टेल यू, और उसमें सीलिया का स्ट्रक्चर, उसको हम कहते हैं अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर एक्सोनीम को, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो आपने जरूर करना है। बाकी जो चीजें हैं एपिथेलियम और वो तो सिर्फ आपको क्लासिफिकेशन में याद आती है, एपिथेलियम जो है या ड्रॉन लेवल में आ जाती है। एक जो पूछा जाता है एपिथेलियम में, जो मैंने देखा है सेकंड ईयर से भी पूछा जाता है और फर्स्ट ईयर में भी आ जाता है, कि ट्रांजिशनल एपिथेलियम, व्हाई इज ट्रांजिशनल एपिथेलियम सो मच इम्पोर्टेंट, उसके फीचर क्या है, जो मैंने आपको बता दिए अभी कि वो डोम शेप सेल्स के होते हैं फीचर कुछ, वो आपने जरूर पढ़ने हैं एपिथेलियम में। बाकी एपिथेलियम में आप सिर्फ लेबल भी कर लो और क्लासिफिकेशन भी आती हो तो बहुत होता है, लेकिन ट्रांजिशनल एपिथेलियम के फीचर आपने जरूर पढ़ने हैं। ठीक है बेटा? मैम प्रोफ में ये डायग्राम्स बनाने के लिए आती? बेटा आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है, यूजली अगर आपका प्रैक्टिकल है तो नहीं आती है, क्योंकि इसलिए क्योंकि आप प्रैक्टिकल जो है उसमें आप अटेम्प्ट कर रहे हो, लेकिन बाज दफा आ भी जाती है, इनका कुछ पता नहीं होता। आपने प्रिपेयर तो की होती है। खैर बेटा आपकी क्लास का टाइम अगला जो है, आपकी क्लास कितने बजे अगली? अब 11। बस बेटा अब आप वो करो, मैं आपको सारी चीजें जो मेरे पास मटेरियल है हिस्टोलॉजी का, कनेक्टिव टिश्यू की मैं आपको प्रेजेंटेशन सेट कर रही हूँ, ये कर रही हूँ, और मेरे पास कुछ और 1-2 नोट्स बने हुए जिसमें छोटे छोटे 3-4 लाइनों के बहुत इंपॉर्टेंट आंसर्स हैं, वो मैं आपको सेंड करूँ, ताकि हो सकता है वो आप पढ़ के आपको थोड़ा कुछ चीजें अटेम्प्ट कर सको आप। ठीक है? थैंक यू सो मच मैम।
चलिए बेटा। और घर में तुम इतनी सुस्त हो, तुमने मुझे अभी तक नहीं बताया कि तुम्हें गूगल क्लासरूम पे सारी पिक्चर्स मिली है कि नहीं मिली है। मैम मिल गई है, मिल गई है। मिल गई है, सारी पिक्चर्स थी पूरी, सब कुछ। यस मैम। ठीक है। मैम और मतलब दूसरी अब बात, मुझे नहीं पता। ठीक है, दूसरी बात है कल एम्ब्रियो में क्या पढ़ा था? मैम कल लेक्चर ही नहीं हुआ था मैम हमारा। हमने कल एम्ब्रियो में कुछ नहीं पढ़ा, हमारा लेक्चर नहीं हुआ था। क्यों, क्या हुआ था? हम कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ रहा था, वो उनसे मीटिंग नहीं क्रिएट हो पा रही थी 150 स्टूडेंट्स के लिए, तो उन्होंने कहा कि अभी नहीं होगा लेक्चर, टाइम खत्म हो गया था। अच्छा ठीक है, सही है, ठीक है बेटा। लेकिन हमने वो आज तक सारा पढ़ा है ना, हाँ ये सारा कुछ हमारे पास आएगा। ठीक है, हमने जो पढ़ा हुआ है ये सारा कुछ आपके पास उसमें इंक्लूडेड है। ठीक है ना, आपके कोर्स में। ठीक है बेटा। यस मैम, थैंक यू। एपिथेलियम, आप जब भी एपिथेलियम पढ़ना, एपिथेलियम में ऑटोमेटिकली कवरिंग एपिथेलियम और ग्लैंड्स इंक्लूड आते हैं। आप समझो ना मेरी बात। और मैम एपिथेलियम में साथ क्लासिफिकेशन और डायग्राम देखने काफी है। बेटा मैंने आपको कहा साथ एक ये बहुत हो सकता है साथ, लेकिन ट्रांजिशनल एपिथेलियम का फीचर देख लेना। उसके जंक्शंस बहुत Okay, ma'am. इंपॉर्टेंट है, जंक्शंस इंपॉर्टेंट है। वो जो उसके वो पोलैरिटी नहीं है, जो एपिकल पे क्या होता है, बेसल पे क्या होता है, लैटरल पे क्या होता है, उसकी मॉडिफिकेशंस एपिकल एरिया पे माइक्रोविलाई, सीलिया और ये स्टेरियोसीलिया जो है, इसकी मॉडिफिकेशंस जो है, ये तो चैप्टर है मैम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉडिफिकेशंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तुम एपिथेलियम बेशक ना पढ़ो, एपिथेलियम को यानी कि जो उसकी वो है ना कि स्ट्रेटिफाइड में क्या है, कोलमनर में क्या है, वो तो तुम खुद भी लिख लोगे की पॉइंट से। लेकिन जो असल चीज एपिथेलियम में पढ़ने वाली है वो जंक्शन और इसके बाद पोलैरिटी मॉडिफिकेशंस जो हैं वो, जिसमें आपके पास माइक्रोविलाई आता है, टर्मिनल वेब आता है, और उसके बाद आपके पास आ जाता है ये क्या कहते हैं, स्टीरोसिलिया, सीलिया, स्टेरोसेलिया, जंक्शंस वाले, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा, चलिए बेटा क्लास खत्म करते हैं इंशाल्लाह। ओके मैम, आप जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।